Friends, in the previous lectures, we have already seen what is the data type and how many different types of data types are available in C#. Today, we are going to classify the data types into two different categories. One is called the value type and another is called the reference types. हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी कहा था जो वैल्यू टाइप्स डेटा टाइप मीन्स जहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू को ही स्टोर करके रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, इंट a इक्वल टू 10. तो हियर a इज एन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल एंड inside the a variable you can only insert the 10. So 10 is the value. So that is the example of the value types of data type. And a reference type means जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, जहाँ पर हम सिर्फ एड्रेस को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर हम रेफरेंस मीन्स एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस टाइप्स. फ्रेंड्स, वैल्यू टाइप डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी स्पेस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैक. That means in stack data structure we can allocate the memory space for the value type, but for the reference type we use the heap data type, heap data structures. मतलब heap memory locations में हम reference types of data के लिए memory space allocate कर सकते हैं. So there are two different differences. One is the in value type data type we can only insert the actual value or actual data, but in reference types we can insert the reference of the data. It's like pointer. Friends, you can remember the definitions of the pointer. Pointer means what? Pointer is a variable which can store the address of another variable. So pointer क्या था? Pointer एक variable था जहाँ पर pointer क्या करता था, others कोई variable का address को store करते थे. So pointer is a variable which can store the address of another variable. So here in reference data types we can insert the reference or address of any data by any variable. And second difference is वैल्यू टाइप वेरिएबल के लिए जो मेमोरी स्पेस अपन एलोकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैक, एंड रेफरेंस टाइप के लिए हम जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द हीप. एंड नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ द वैल्यू टाइप डेटा टाइप इज इंट, कैर, स्ट्रक्चर, एंड as far as reference type is concerned, classes, interface, arrays, string. So these are the example of the reference data types. That is the very important questions for your university examinations point of view, that explain value type data type and the reference type data type with example. So there are an example. See here, int val equal to 100. Int val equal to 100. So val is a variable, that is the integer type of variable where 100 is assigned 100, that is a value. So that is the example of the value type of variable. Here int data type is used for the value type of data type. Next, console.writeLine, the initial value of the variable was val. val का वैल्यू जब आप डिस्प्ले करोगे आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? 100 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि 100 अभी कहाँ पर स्टोर है? val जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है. नेक्स्ट हमने क्या लिख रहे हैं? टेस्ट val. टेस्ट क्या है? टेस्ट एक मेथड है. देखो टेस्ट हम मेथड नीचे में फिर से डिफाइन किया, तो वहां पर टेस्ट मेथड के थ्रू हमने क्या किया? वैल वेरिएबल को पास किया एज ए पैरामीटर. तो जब हम वैल को पास किया एज ए पैरामीटर टेस्ट मेथड के अंदर,
तो आपने को ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नाउ इज, मतलब फिर से वैल्यू के वैल्यू का अपन क्या किया, डिस्प्ले किया। क्या हुआ, हमने जब टेस्ट मेथड के थ्रू वैल्यू को पास किया तो टेस्ट मेथड में क्या हो रहा है हम देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है, स्टैटिक वॉइड टेस्ट इंट गेट वैल। गेट वैल मीन्स जो भी वैल्यू हम वहां पर पास करेंगे, पास किए तो वैल के अंदर पास किया 100, तो 100 अभी कहां पर आया, गेट वैल में आया। देन क्या हुआ यहाँ पर, इंट टेम इक्वल टू 10। टेम एक अनदर वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 10 से। देन गेट वैल्यू इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन, टेम इंटू 20। टेम इंटू 20, टेम के वैल्यू क्या है 10, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 इंटू 20 तो कितना होगा 200। तो गेट वैल्यू में जो वैल्यू आ रहे हैं दैट इज क्या है 200। सो से यहाँ पर वही कहा जा रहा है, जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द वैल इज पास टू द टेस्ट बट द पास्ट वैल इज मॉडिफाइड इन द टेस्ट। सो दैट टाइम क्या होगा, द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ वैल इज नॉट रिफ्लेक्टेड एंड ओरिजिनल वैल्यू इज रिटर्न्ड। So that time the value, initial value of the variable was 10, the value of the variable now is 100। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हुआ that cannot be possible because the modified value of the value is not reflected and original value is written। मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, हमने जो वैल वेरिएबल का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो ओरिजिनल वैल्यू को ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन डिस्प्ले कर रहे हैं। There are another example, see here। फर्स्ट हमने क्या किया, एक डेटा टाइप टेस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट इक्वल टू न्यू डेटा टाइप टेस्ट हमने किया। नाउ यहाँ पर डेटा टाइप टेस्ट क्या है, डेटा टाइप टेस्ट दैट इज योर क्लास नेम। हियर वी डिफाइन ए क्लास, सी क्लास डेटा टाइप टेस्ट, और उसके अंदर हमने काली वैसे ओपन एंड क्लोज किए। फ्रेंड्स ये जो है दैट इज कॉल्ड द आपका क्लास नेम, और उस क्लास का हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा टाइप को क्रिएट किया। दैट इज द सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। सो डेटा टाइप टेस्ट ओबीजी टेस्ट, ओबीजी टेस्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट नेम। आपने क्या लिखा, डेटा टाइप टेस्ट दैट इज योर क्लास नेम ब्लैंक स्पेस ओबीजी टेस्ट। सो आप अगर इतना ही लिखते हैं, जो डेटा टाइप टेस्ट ब्लैंक स्पेस ओबीजी टेस्ट, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। बट when you declare any object, no memory space will be created for that particular class। So क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। and what is the syntax to create an object, that is data type test blank space obj test equal new data type test parenthesis open and close। Here new keyword is used to create or to allocate new memory space for the particular class। So that is called the object creation in C#। Data type test that is called class name, then object name equal new class name parenthesis open and close। Friends आप अगर यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते थे, सिर्फ अगर क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम लिखते थे दैट, तो फिर उसको अपन क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। बट जब आप लिखते हो डेटा टाइप टेस्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट इक्वल टू न्यू, फिर से आप जब क्लास नेम लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, ओबीजी टेस्ट डॉट वैल इक्वल टू 100। अभी ओबीजी टेस्ट डॉट वैल मीन्स ओबीजी टेस्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट नेम, ओके, डॉट वैल, वैल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास डेटा टाइप टेक्स्ट। देखो जो भी वेरिएबल को आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द क्लास, और मेंबर ऑफ द क्लास को आप अगर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना चाहोगे तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एंड यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर भी वैल नाम का एक वेरिएबल हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था। कहाँ पर डिक्लेयर किया था, क्लास के अंदर। और जब उस क्लास से बाहर, क्लास के बाहर जब मेन फंक्शंस के अंदर उसको अपन एक्सेस कर रहे थे, पहले क्या किया, ओबीजी टेस्ट नाम का एक
ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और वो क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल में वैल्यू को क्या किया, इनिशियलाइज किया। नाउ टेस्ट ओबीजे टेस्ट, अभी टेस्ट मीन्स व्हाट, टेस्ट एक मेथड हमने डिफाइन किया, वो मेथड को हमने यहाँ पर कॉल किया और उस मेथड के अंदर एज ए वेरिएबल एज ए पैरामीटर हम क्या पास कर रहे हैं, ओबीजे टेस्ट। ओबीजे टेस्ट क्या है, दैट इज द रेफरेंस ऑफ द डेटा टाइप टेस्ट इज पास्ड बिकॉज हियर इन सी ऑब्जेक्ट टाइप दैट इज रेफरेंस टाइप। सो यहाँ पर टेस्ट के अंदर हमने क्या पास कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे वो क्लास का। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो दैट मीन्स दैट इज द रेफरेंस टाइप ऑफ वैल्यू हम पास कर रहे हैं कहाँ पर, टेस्ट मेथड के अंदर। क्लियर, तो टेस्ट मेथड के अंदर क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा को हमने पास किया, दैट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ द रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने फिर से वहां पर गए मतलब टेस्ट मेथड के अंदर गए तो क्या हुआ, वहां पर डेटा टाइप टेस्ट करके है एंड डेटा टेस्ट। सी यहाँ पर इन टेम इक्वल टू 10 फिर से लिखा एंड डेटा टेस्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखे, टेम्प इंटू 20। तो यहाँ पर द पास्ट वैल्यू इज मॉडिफाइड इन टेस्ट, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है और वो मॉडिफाइड वैल्यू क्या होगा वहां पर एज ए आउटपुट डिस्प्ले होगा। The modified value of the value is reflected and original value is changed। तो जहां पर वैल्यू टाइप में ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, मतलब वहां पर मॉडिफाइड वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, बट रेफरेंस टाइप में क्या हो रहा है, मॉडिफाइड वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड ओरिजिनल वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस between the value type data type and the reference type of data type. Okay, so here the modified value will be displayed. Next concept is called the boxing and unboxing. It is very important questions for your university examinations point of view. Friends, boxing and unboxing it completely depends on the data types. Boxing, that is the convergence of the value type into the reference type, and unboxing, that is opposite, that is the convergence of a reference type into a value type. So with boxing and unboxing, one can link between value type and reference types by allowing any value of a value type to be converted to and from the object. So friends, when we convert a value type data type into the reference type data type, that type of concept is called the boxing, and just opposite way, when we convert a reference type of data type into a value type of data type, that is called the unboxing. For example, say here int val equal to 100, here int val equal to 100, that is the value type of data. नेक्स्ट हमने एक obj नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप। तो ऑब्जेक्ट टाइप दैट मीन दैट इज द रेफरेंस टाइप, obj जो वेरिएबल है वो रेफरेंस टाइप है, बट obj वेरिएबल में हमने वैल्यू कौन सा असाइन किया, वैल्यू टाइप वैल्यू को असाइन किया, मतलब वैल का जो वैल्यू है वो वैल्यू टाइप है एंड obj जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है और वो obj में जाके स्टोर हो रहा है। फ्रेंड्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉक्सिंग। एंड आपको और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब यहाँ पर वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट होता है वो इम्प्लिसिटली होता है, मतलब आपको वहां पर डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं होता है। आप कोई भी वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप का वेरिएबल में असाइन कर दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। सो वैल्यू टाइप डेटा कैन बी चेंज इनटू द रेफरेंस टाइप automatically, and that is also called the implicitly. So it is also another features of the boxing, जो when value type data type will be converted to the reference type, it will be done by implicitly, मतलब आपको वहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इन द अनदर वे आप देखिए यहाँ पर int val 100 मतलब दैट इज द वैल्यू टाइप, देन हमने क्या किया obj में वैल्यू को वैल के वैल्यू को स्टोर किया, मतलब obj मतलब वो ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो गया, रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट हो गया।
तो अभी ओबीजे में जो वैल्यू है वो रेफरेंस टाइप है। देन फिर से नाम का एक इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, और नाम वेरिएबल में ओबीजे के वैल्यू जब अपन असाइन कर रहे थे, ओबीजे के वैल्यू डायरेक्टली हम असाइन नहीं कर सकते। क्यों? ओबीजे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है दैट इज रेफरेंस टाइप, एंड नाम करके जो वेरिएबल है दैट इज इंटीजर टाइप। तो मतलब इंटीजर टाइप बोले तो दैट इज वैल्यू टाइप, मतलब रेफरेंस टाइप के वैल्यू डायरेक्टली आप वैल्यू टाइप डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द रेफरेंस टाइप टू द वैल्यू टाइप। मतलब यहाँ पर नाम इंटीजर टाइप का था, तो यहाँ पर ओबीजे वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको पहले हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम क्या कर सकते हैं उसमें असाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? नाम वेरिएबल के अंदर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनबॉक्सिंग। मतलब व्हेन वी कन्वर्ट ए रेफरेंस टाइप data type into value type data type, that is called the unboxing, and when we convert a value type data type into the reference type data type, that is called the boxing. So very important example of the boxing and unboxing. इसका प्रैक्टिकल में भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल में भी ये वाला प्रोग्राम है जो टू डेमोन्स्ट्रेट बट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. So it is very easy program. First you have to declare a variable as a value type, and then you have to declare another variable of the object type, and then you can directly assign the value type of variable into the object type or reference type of variable. तो यहाँ पर जब value type को आप reference type में convert करते हो वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होता है, बट जब आप रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो व असाइन करना चाहते हो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है व इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होता है, आपको एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. एंड वैल्यू टाइप में जो हुआ, सॉरी बॉक्सिंग में जो हुआ था दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट concept that is called the operators and expressions. Operators means what? Operator means using the operator we can perform some operations only. For example, suppose see here we write an expression. What is that? Result equal number into 100. So that is called the expressions. But number into 100 here multiplications indicates it is an operator. Means number वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू के साथ 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होके क्या होगा, रिजल्ट में जाके स्टोर होगा. सो रिजल्ट इक्वल नंबर इनटू 100. Okay, result equal number into 100. Here multiplication is an operator and complete जो सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशंस. देखो दे आर कॉल्ड द ऑपरेंड्स. रिजल्ट, नंबर एंड 100 दे आर कॉल्ड द ऑपरेंड्स, एंड इक्वल एंड मल्टीप्लिकेशन दे आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स. सो combinations of the operands and the operators are called the expressions. Okay, combinations of the operands and the operators are called the expressions. Friends, there are so many types of operators are available in C#. So here first type of operator is arithmetic operator. In C#, there are so many arithmetic operators are available. For example, plus, minus, multiplication, division, modulus. Then plus plus, minus minus, and tilde. So these are called the arithmetic operator. Friends, here plus means it is used to perform the addition operation. Minus means it is used to perform subtraction operation, multiplication for the multiplication operation, division for the division operation, and
percent symbol is used for the modulus. Modulus means here you can calculate the remainder. मतलब after performing the division operation, if you want to find out the remainder, so that time you have to use the modulus operator. Here plus plus and minus minus, they are also called the increment and decrement operator in C and C++. They are also called the arithmetic operator, because here also you can perform the addition operation. Here plus plus means whatever value, suppose अगर आप लिखते हो a plus plus, मतलब a में जो भी previous value होगा उसके साथ 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. और आप अगर लिखते हो a माइनस माइनस, मतलब a का प्रीवियस वैल्यू कुछ भी हो उसके साथ क्या हो, उसमें क्या होगा, 1 माइनस होगा. And tilde symbol is used for the complement, ones complement. Ones complement means if the input is 0, the output will be 1, or if the input is 1, the output will be 0. So next is the comparison operator. Greater than, less than, greater than equal, less than equal, double equal, not equal. These all are the example of the comparison operator. Greater than operator, it checks that if a number is greater than the other number, and less than is used to check if the number is less than the other number. Greater than equal means it checks if a number is greater than or equal to the other number, and less than equal means checks if a number is less than or equal to the other number. Equal, double equal means checks if two values are equal, and not equal means checks if two values are not equal. So these are the comparison operator. Next, conditional operator, that is called the ternary operator. Friends, question mark and colon. For example, a greater than b in parenthesis, question mark, then a colon b. That type of expression, that type of condition is called the ternary operator and conditional operator. Here actually using the ternary operator, you can check if given expression evaluates to true. If true, then first expression is evaluated, or else the second expression will be evaluated. It is the only operator to take 3 operands. Okay, so that is called the ternary operator. Next is the member access. Member access means जैसे कि आप अगर कोई वेरिएबल ब मेंबर ऑफ द क्लास को एक्सेस करना चाहते हो आउटसाइड ऑफ द क्लास, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज द डॉट ऑपरेटर. सो डॉट हियर डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. Here equal, single equal symbol is used as an assignment operator. मतलब using the single equal symbol you can assign the value into the variable. For example, आप लिख रहे हो जो a equal to 5, तो here equal symbol is used that 5 is assigned to the a. There are also 4 different types of assignment variable, that is plus equal, minus equal, multiplication equal and division equal. प्लस इक्वल मीन्स सपोज आप अगर लिखते हो a प्लस इक्वल 5, मतलब क्या होता है, a इक्वल a प्लस 5. सपोज आप अगर लिखते हो a माइनस इक्वल टू 5, दैट मीन्स क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस 5. अगर a का प्रीवियस वैल्यू 10 है तो अभी आप क्या लिख रहे हो, a इक्वल टू a माइनस 5, मतलब a इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज 5. So that is called the assignment operator. There are also 2 types of assignment operator, minus equal, multiplication equal, division equal. You can also say that modulus equal also. So these are the assignment operator, but actual assignment operator is single equal. Using that we can just assign the value into the variable. Next is the logical operator. Logical operator means double ampersands, double pipeline, not. First one indicates that is the logical and, second one indicates that is the logical or, third one indicates that is the logical not, and last one indicates that is the cast the operands to a given data type. Friends, in logical and operator, when both the condition will be true, then only the total condition will be true.
हियर इन लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एंड गेट का ट्रूथ टेबल हम फॉलो करते हैं। लॉजिकल और में हम और गेट का हमने ट्रूथ टेबल फॉलो करते हैं। नॉट में नॉट गेट का हम ट्रूथ टेबल, मतलब नॉट में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर इनपुट इज फॉल्स आउटपुट विल बी ट्रू, इफ द इनपुट इज ट्रू आउटपुट विल बी फॉल्स। एंड लॉजिकल और में क्या होगा, व्हेन बोथ द कंडीशन विल बी फॉल्स देन ओनली आउटपुट विल बी फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल और का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो सपोज आपको किसी ने कहा जो एक पर्टिकुलर ईयर है, ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है और नहीं है, वो आपको चेक करना है। अभी लीप ईयर चेक करने के लिए दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्या है, ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर ईयर इज लीप ईयर। बट देयर आर अनदर कंडीशंस, अगर ईयर को आप 400 से डिवाइड करो, कब, अगर कोई भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट्स 0 है तो पर्टिकुलर ईयर को आप 400 से डिवाइड करो, एंड 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है तो फिर उसको अपन बोलेंगे लीप ईयर। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर। सो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉजिकल और लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, वहाँ पर सारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सपोज अगर आपको बताया जाता है जो यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स, तो क्या करोगे, देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो ए कब ग्रेटर देन मतलब लार्जेस्ट होगा, बी कब लार्जेस्ट होगा, सी कब लार्जेस्ट होगा। सो दैट टाइम यू हैव टू चेक सम कंडीशंस। यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, मतलब लॉजिकल एंड A इज ग्रेटर देन C। से अगर A B से भी बड़ा है एंड A C से भी बड़ा है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तब आप कह सकते हो A इज लार्जेस्ट। बट सपोज अगर A इज ग्रेटर देन B बट A इज नॉट ग्रेटर देन C, तो फिर यू कैन नॉट से दैट A इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन द 3 नंबर्स। सो दैट टाइम व्हेन बोथ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली आउटपुट विल बी ट्रू। So that time you can use the logical and operator. So here that is the assignment operator. The example of the assignment operator equal to variable equal to expression. For example height equal to something, weight equal to something, मतलब यहाँ पर particular value are assigned to the variable. Next unary operators. Unary operators means it is depends on the number of operands. If there are a single operand, that is called the unary operators. Here plus plus symbol minus minus symbols are used for the unary operator also. For example a plus plus, a plus plus means operand कितना है, एक ही operand है, so that time a plus plus that is unary operator. And बाइनरी जैसे कि यहाँ पर प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू की बात कर रहा था मैंने, प्लस इक्वल बोले तो मतलब फॉर एग्जांपल x प्लस इक्वल टू 5, तो क्या लिख सकते हो आप x इक्वल टू x प्लस 5। अगर x का प्रीवियस वैल्यू अगर 5 होता है, सॉरी x का प्रीवियस वैल्यू अगर 10 होता है तो क्या होगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। x माइनस इक्वल टू 5 मतलब क्या हो रहा है, x इक्वल टू x माइनस 5 मतलब 10 माइनस 5 दैट इज 5। सपोज x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या हो रहा है, x इक्वल टू x मल्टीप्लीकेशन 5 मतलब x का प्रीवियस वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो x डिवीजन इक्वल टू 5 मतलब x का प्रीवियस वैल्यू अगर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। x रिमाइंडर सो दैट इज मॉड्यूलस इक्वल टू 5 मतलब x इक्वल टू x डिवीजन 5। x का वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या था 10, 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा 0, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आंसर आ रहे। So the precedence of operator in Caesar. So these are the precedence of the operator. मतलब parenthesis को first preference है, first precedence है, then increment decrement, then multiplication division modulus, then addition subtraction, then less than or equal to, greater than or equal to, then equal to or not equal to, then logical and, then logical or, and then assignment and shortcut operators. So these are the list of the operator precedence. Just you have to remember it when you make the calculations between an expression. So that time you have to depends on the operator precedence. So
there are some example of the post and pre-increment operator, you know. So that is the examples of the arithmetic operator. Here we make the arithmetic values are assigned to the variables, and here arithmetic operators used in expressions and output is displayed. Okay, so friends, today we want to complete here. In the next lectures we will see the if else statement. So friends, thank you so much.